Good morning. हेलो लक्ष्मी। हाँ, हाय मैम, अब गुड हाँ मॉर्निंग। आवाज। हाँ गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, आवाज आ रही है ना? जी मैम, क्लियर है ओके वॉइस। ओके ओके। बस 1 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे। 9:30 में सब बच्चे धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं। पारुल मैम शुरू किया जाए? श्योर श्योर, एक थैंक यू। सेकेंड लक्ष्मी। स्क्रीन में दिख रहा है ना जी, मेरा जी मैम, प्रेजेंटेशन? विजिबल है। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, आप सभी अपना माइक ऑफ करिए। बस क्लास स्टार्ट हो रही है। थैंक यू। नमस्कार, एईसीसी 1 के सेंट्रलाइज्ड लेक्चर सीरीज के 9वें व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे साथ हमारी आज की रिसोर्स पर्सन डॉक्टर पारुल बनर्जी मैम जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार मैडम। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि मैडम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में सितंबर 2019 से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। मैडम ने अपनी शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। इनका स्पेशलाइजेशन इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में है। मैडम एक बहुत ही समर्पित टीचर हैं, साथ ही साथ एलएनएमयू के अन्य कार्यों में इनकी भागीदारी काफ़ी हद तक है, जो कि बहुत बहुमूल्य है। मैडम यूनिवर्सिटी के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के कार्यों में बहुत ही सक्रियता से सहभागिता दिखाती हैं। जितना मैं जानती हूँ मैडम बहुत ही एक समर्पित टीचर हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप सभी छात्र छात्राओं को इस क्लास के लिए शुभकामनाएं। और अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मैडम से आग्रह करती हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद।
Thank you, Lakshmi. Thank you for such a nice introduction. So, जैसा कि लक्ष्मी ने कहा, मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट की पारुल बैनर्जी हूँ और मैं आज AECC 1 के एक यूनिट कवर करने जा रही हूँ। तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है प्रेजेंटेशन? जी मैम। ओके, अगर कोई दिक्कत होगा, हाँ, यस, if there is any problem you can let me know. Okay, so without wasting further time, we will get back to our topic. As you know, this is your AECC course and I'll be covering unit 4. मैम आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं है? जी मैडम है। आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करिए, मैडम की वॉइस एकदम क्लियर है। ओके, आप लोग अपना मैम, आप नेटवर्क शुरू चलो करें। बेटा। हाँ, श्योर, ओके लक्ष्मी, थैंक यू। सो the topics that I'll be covering in this session would be what is sanitation and hygiene. हम लोग sanitation और hygiene क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे. Then we will be talking about the importance of community participation and the role of state agencies in maintaining sanitation and hygiene. We will talk of the effect of cleanliness. We have been talking of Swachh Bharat Abhiyan. आप लोगों ने बहुत सुना है क्यों स्वच्छता जरूरत है. We'll be talking of that. What is the effect of cleanliness in the entire the health, the economy, etc. Then we'll be talking of how diseases, especially the infectious diseases and the vector-borne diseases, are spread due to lack of hygiene and sanitation, and we'll discuss at length about the diseases that can spread from one person to other through body fluids, through excreta, etc. And what is the role of cleanliness, good sanitation and hygiene in ensuring that these infectious diseases or the vector-borne disease are not spread. So शुरू करने के पहले we'll be talking a bit about Swachh Bharat Abhiyan. So we all know that the Swachh Bharat Abhiyan was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi on 2nd of October 2014 on Gandhiji's 145th birth anniversary. And this is a countrywide campaign, right? And the main aim of this campaign is to eliminate open defecation and to improve solid waste management, to build good sanitation facilities and providing toilets to in the rural areas where open defecation is very, very common. So it is India's largest cleanliness drive till date, and about 3 million government employees and students, we are taking part in Swachh. This course is also a part of the Swachh Bharat Abhiyan. So all the students from all in parts of India are participate in this Swachh Bharat Abhiyan. Now, broad objectives of this mission is to have household toilets, to have community toilets where having individual household toilet is not possible, to have public clean toilet, solid waste management, how to ensure proper sanitation even if there are toilets, and if the toilet is not properly built and the sanitation is not proper, then whatever the excreta, the human excreta or the fecal waste, etc., they will go to the groundwater and they will contaminate the soil. The water, will be talking of that later on. So if we are not able to manage the solid waste properly, then it would lead to contamination of the water, the soil, etc., and that would cause a whole lot of problem. So the objective of this mission is proper solid waste management, and apart from that, creating public awareness about the importance of proper sanitation and hygiene and cleanliness, and
capacity building and other administrative roles also this Swachh Bharat mission is playing. Now we'll be talking of sanitation and hygiene. So what do you mean by sanitation and hygiene? Sometimes these terms are interchangeably used. Sanitation refers to the public health condition that is related to having clean drinking water and proper treatment and disposal of human excreta and sewage. Okay? It ensures that when we are talking of proper sanitation, it means that not only should there be a good toilet, good etc., good toilet, but also there should be a proper method in place for treatment and disposal of the human excreta. ठीक है? Proper sewage system, clean drinking water, etc. This is sanitation. What do you mean by hygiene? Hygiene is the behavior that is expected from you, hygienic behavior, that the behavior that is expected for proper management of the fecal waste, so that the infection chain is broken, the waste that the infections that are spread because of improper. सभी लोग ये इंश्योर करें कि उनका माइक ऑफ रहे, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी मीटिंग से. हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा. ठीक है. सो देयर इज प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा. Hygiene in a broader term refers to like hand hygiene, personal hygiene, hand hygiene. Because of the COVID pandemic, we know what is hand hygiene. Hygiene, continuously sanitizing hand, washing your hands. Personal hygiene, food hygiene means when you are cooking, storing, etc. The food should be covered. Ensuring that flies are not sitting on the food, because flies carry lot of pathogenic germs on them. Ensuring that the food is not left open, etc. That is food hygiene. Cooking medium should be proper usage of proper oil, covered food, etc. Ensuring safe drinking water. Respiratory hygiene means when you are coughing, you should cover your hands, etc. Safe disposal of human faces, animal faces also refers to hygiene. And general hygiene in terms of washing clothes, surfaces, the metallic surfaces, cleaning your house, etc. And the disposal of solid waste. Now, here I want to quote President Pranav Mukherjee, who said in 2019 that we must not tolerate the indignity of homes without toilets and public spaces littered with garbage. For ensuring hygiene, waste management, and sanitation across the nation, a Swachh Bharat Abhiyan was started, which was a tribute to Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary. Now, what is the need of cleanliness and hygiene? If you ask me broadly, what is the need to be clean or hygienic? So, we all know we need good proper sanitation and hygienic condition. We should have we should maintain good hygiene because of first the health. Okay? Health means not just your physical, but also the mental and economic health. Physical health to main pata hai. If we are hygienic, we would like prevent ourselves from catching certain infections. That we all know. Mental and economic health means if we live in a clean environment, we would be happy from inside. We would be less irritated. So it is always preferable to live in a happy, good, clean environment. And cleanliness is also good for the economy, because this economic health is related to tourism and global interest. If your country is not clean, nobody would be interested to visit your country. It would not generate revenues. So if your
country is clean, if you can put up a good picture of your country in front of the whole world, then it would attract more tourism, it would attract global interest, foreign business would prosper in our country, people would would want to invest in this country. Like, for example, I will give you a small example. Take your city, Darbhanga, our city, Darbhanga. So what is, we have beautiful forts, beautiful buildings here. And it can be a good tourist spot if we can maintain, if we can clean the city properly. If the city is clean, the roads are proper, then it is bound to attract tourists. Right? So ये बहुत जरूरी है. Cleanliness is not just for your physical health, it is also important for your mental and economic health, and it is important for promoting tourism and global interest. Then we'll be talking of community participation. Now, if we want to have proper sanitation, hygienic condition, etc., then it is not the responsibility of the government alone to facilitate these things. Community participation here is very important. And here I would like to quote Goethe, who said in 1999 that it is a myth that the affected population is too shocked and helpless to take responsibilities of their own survival. And it is superseded by the reality that, on the contrary, many find new strength during an emergency. So if we take that improper sanitation, unclean habits, etc., is an emergency that is leading to the spread of diseases, etc., what we'll be discussing now. So isn't it our responsibility to ensure that we live in a clean environment? Isn't it our responsibility to make the system clean? Yes, we need government's help, we need certain bodies, but the major responsibility is ours, because the problem is ours. It is not the problem of a community of people or it is a global problem. We are facing the problem. So we should not pretend to be too shocked and helpless that we cannot do anything about it. Instead, we should take responsibility, and during this, you should take it as an emergency situation, like the government had taken in the year 2014. And it should be like, during this emergency situation, we must have new strength to move forward. This is community participation. And so, like any emergency, community participation is required in the Swachh Bharat Abhiyan. And like, for example, I'll tell you, the responsibility of the government is to build toilets. Okay, the government will give you infrastructure to build toilets, etc., good sewage facilities, drainage system, etc. But whose responsibility it is to maintain the toilet? It is the responsibility of the community. So always there should be, in Swachh Bharat Abhiyan, decentralization is required, and one should involve the urban local bodies and other people to help in making the Swachh Bharat Abhiyan a success, because government will give you the infrastructure, will give you monetary benefits, but if you are unable to maintain it, then the whole mission would be a failure. So community participation in Swachh Bharat Abhiyan is absolutely necessary. This is an example. You must have heard about the SHG, that is self-help groups, right? So these self-help groups are the groups that are responsible for taking the Swachh Bharat Abhiyan further, and it is they are like the connecting link between the government and the public. They would train the public on how to maintain proper hygiene, how to maintain proper sanitization. So there is, for example, in Bihar,
there is a Swachh Jivika Swachh Bharat campaign, ठीक है, and what it does, it collaborates with the NGOs, the Anganwadis, and trains the self-help groups so that they can go and train the other people. So the SCGs are the people who are responsible for ensuring that the rural community participates actively in health and sanitation program and benefit from it. And it is the responsibility of the Swachh Jivika Swachh Bharat campaign to train these people, to train the self-help groups. ठीक है, तो this is just an example of how community participation is working, and there are loads and loads of campaigns that are taking place, programs that are taking place in order to ensure that there is perfect community participation or good community participation. Now, this is an important aspect. All this was about what is sanitation, what is hygiene, how cleanliness is important, and what is this, how is the Swachh Bharat Abhiyan involving communities to go about its purpose. We will now move to a bit of the technical aspect, and we'll be talking about now the diseases. So, and how is this disease linked with proper sanitation and hygiene? So when we are talking of diseases, for the people who are from non-biology background, I'll start with what is the difference between infectious and non-infectious diseases. So, मैम yes, हिंदी में समझाइए ना, पता नहीं चल रहा है कुछ कुछ। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ हिंदी में बताने को, ठीक है। चलो, तो हम जब डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज जो नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से है उनको हम पहले ये समझाएंगे जो डिजीज कैसी होती है, कितने तरह की होती है, और डिजीज कैसे रिलेटेड है प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन से। सो डिजीज को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक इन्फेक्शियस डिजीज और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज वो होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। अगर मुझे ये कंडीशन है जैसे खांसी, सर्दी, ये क्या होता है, अगर हम खांस रहे हैं, मुझे सर्दी है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो मैं उस सर्दी को कहीं अपने घर पे दूसरे को, मैं अपने बच्चे को दे दूंगी या क्लासरूम में मैं अपने स्टूडेंट्स को दे, दैट इज कॉमन, ठीक है। तो ऐसे डिजीजेस को कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इसके अलावा एक तरीके का डिजीज होता है जिसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एक इंसान के अंदर कुछ मैल फंक्शन की वजह से उत्पन्न होता है, जो कि लेकिन वो उस डिजीज को दूसरे इंसान पे नहीं फैला सकता। वो उसी के अंदर बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, उसके अंदर कुछ दिक्कतों की वजह से वो प्रॉब्लम होती है और वो दूसरे इंसान तक वो नहीं कर सकता। तो जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है तो नेचुरली उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या उसे हम इसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस हमें इन्फेक्ट कर रहा है और मैं उस पैथोजन को फैला रही हूँ अगर आई हैव दैट कंडीशन। जैसे हम लोगों ने कोविड के बारे में तुमने सुना है, बहुत चर्चित है, अभी भी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोविड। सो वो क्या है, होता है एक वायरस है। सो इफ वो वायरस अगर इन्फेक्ट कर लिया एक पर्सन को, तो वो वायरस उस पर्सन के अंदर पनपेगा, बढ़ेगा, उसकी और क्या करेगा, वो एक दूसरे पर्सन को भी फैला देगा। सो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब भी कोई डिजीज फैलेगा तो वो हमेशा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहे हैं तो वो चूंकि वो नहीं फैल रहा है, वो एक पर्सन के अंदरूनी किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो डिसेंट्री, जिसे जो डायरिया भी बोला जाता है, लूज मोशंस, दैट इज डिसेंट्री, कॉमन फ्लू, पॉक्स एटसेट्रा, ये सारी हो गए हमारे इन्फेक्शियस डिजीज जो कि किसी पैथोजन की वजह से हो रहे हैं। और इसके कॉन्ट्ररी हमारा
नॉन पैथोजेनिक, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो गए जैसे नॉन पैथोजेनिक, बीपी, हाइपरटेंशन, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज एक्सेट्रा। तो इफ मेरे को अगर डायबिटीज है तो मैं उसे फैलाऊंगी नहीं, वो मेरे अंदरूनी किसी प्रॉब्लम की वजह से हुई है। तो दीज आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। So I hope it is clear what are infectious and non-infectious diseases. Yes, ma'am. Now, Yes, okay. ma'am. Okay. Now we will move on to इन्फेक्शियस डिजीज फैलता कैसे है। तो ये बिकॉज ऑफ कोविड तुम्हें बहुत अच्छे तरह से पता चल गया है अभी हम लोगों को, हम लोग बहुत जागरूक हो गए हैं जो ये इन्फेक्शियस डिजीज फैलता कैसे है। तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से टच में आता है, हाथ मिलाता है, तो टच में आना मतलब प्यार भरा भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, मतलब कॉन्टैक्ट, ठीक है, एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट। साथ मिलके खा रहे हैं, साथ मिलके मतलब प्यार, मतलब दे आर स्लीपिंग टुगेदर, एक्सचेंजिंग लव, हॉस्पिटल में है, टॉयलेट की वजह से फैल सकता है, ये है इम्पोर्टेंट, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होने की वजह से, और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू से भी वो फैल सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन एक ऑर्गेनिज्म के साथ कांटेक्ट में है, वो ऑर्गेनिज्म दूसरे जगहों में जाएगा और उसे फैला देगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने सुना होगा, कुछ होते हैं किन्हीं को हम बोलते हैं बैक्टीरिया, किन्हीं को बोलते हैं वायरस, किसी को हम बोलते हैं फंगाई एक्सेट्रा। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूजुअली इन लोग फ्री लिविंग नहीं होते हैं। फ्री लिविंग मतलब वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही बहुत दिनों तक नहीं पनप सकते, कुछ टाइम तक वो एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, लेकिन वो जब तक खुले एनवायरनमेंट में, खुले ग्राउंड में या किसी सरफेस में, तब तक वो खोजेंगे जो वो किसी, जैसे अगर हम होस्ट की बात, मतलब होस्ट, हम लोग एक होस्ट है जो जिनको वो खोजेंगे, जो दे वुड लाइक टू गेट इनसाइड, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत है, वो सरवाइव करने के लिए उन्हें जरूरत है कि वो किसी इंसान को इन्फेक्ट करे, ठीक है। यहाँ पे हम इंसानों की बात करते हैं, होस्ट और भी कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि वी आर कंसर्न्ड विथ अस, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, तो उन्हें जरूरत है। अब कुछ पैथोजन है जो बहुत सालों तक एक सिस्ट में बन के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, कुछ है जो ज्यादा टाइम, कुछ घंटों तक ही बाहर सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें तुरंत किसी होस्ट की जरूरत है, ठीक है। तो उनके सर्वाइवल के लिए उन्हें एक होस्ट से दूसरे होस्ट में कूदना है, और उस कूदने के दौरान हो सकता है कुछ टाइम तक उन्हें बाहर रहना पड़े, बाहर वो सरवाइव करे कुछ टाइम तक, लेकिन इवेंचुअली अगर वो दूसरे होस्ट पे न जाए तो वो नहीं जिंदा रह सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो पैथोजन कोशिश करेगा जो हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो। तो ये एक नेचुरल, जो भी लिविंग थिंग है उसे मन करता है, जैसे हम लोग भी लिविंग थिंग है, वो पैथोजन भी लिविंग थिंग है, उसे भी सरवाइव करने का मन कर रहा है, हमें भी सरवाइव करने का मन कर रहा है, हमारा शरीर उसे कम्बैट करने की कोशिश करता है, और वो जो है पैथोजन वो ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्ट करने का कोशिश करता है। सो दिस इज अबाउट हाउ इन्फेक्शियस डिजीज कैन स्प्रेड, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं डिजीज ट्रांसमिशन, तो जैसे अभी बात की, कुछ होस्ट फैक्टर्स होंगे और कुछ पैथोजन फैक्टर्स होंगे जो कि कारण होंगे, जो वो होस्ट, वो पैथोजन कितना ज्यादा इन्फेक्शन कॉज रहा है, कितना फास्ट फैल रहा है, और क्या वो नहीं फैल रहा है, वो कैसे फैल रहा है। तो एक हो गया जो पैथोजन रिलेटेड फैक्टर है, उसे हम लोग बोलते हैं द organisms or the pathogens ability to survive and multiply in the environment। जैसे कि मैंने कहा, जो कुछ पैथोजन को इमीडिएटली होस्ट की जरूरत होती है, वो ज्यादा देर खुले फ्री लिविंग नहीं रह सकता, उसे तुरंत अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए तुरंत एक होस्ट की जरूरत होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो एक लेटेंट पीरियड तक बाहर सरवाइव कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें होस्ट की जरूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में
जब ट्रांसमिट होते हैं तो वो ऐसे ही नहीं ट्रांसमिट होते, वो बीच में उसे एक वेक्टर की जरूरत होती है या एक इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत होती है जिसके थ्रू से वो फैलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैसे वेक्टर के थ्रू से, मतलब वो हमसे डायरेक्ट किसी दूसरे इंसान में नहीं जाएगा, वरन मैं एक वेक्टर को मेरा इन्फेक्शन दूंगी, वो वेक्टर कैरी करके इन्फेक्शन को ले जाएगा दूसरे इंसान तक। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल वो है, तुम लोग सुने होंगे मलेरिया। सो मलेरिया कैसे फैलता है? मॉस्किटो बाइट से, दिस वी ऑल नो। तो और मलेरिया फैलाता क्या है? एक पैरासाइट को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, वो प्लाज्मोडियम, सपोज आई एम हैविंग मलेरिया, मेरे अंदर प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन है, मुझे अगर एक एनोफिलिस मॉस्किटो काटेगी फीमेल, वो मेरा ब्लड सक करते करते वो अपने अंदर वो ले लेगी कि मलेरियल पैरासाइट को। ठीक है, और फिर वही मॉस्किटो जब दूसरे इंसान को काटेगी तो उसे वो पैरासाइट दे देगी। तो ये कैसा हुआ? मैंने डायरेक्ट छींक के या किसी पर्सन को छू के या किसी से बात करके उस इन्फेक्शन को नहीं फैलाया। मेरा इन्फेक्शन कैसे फैला? मॉस्किटो के थ्रू से फैला। ठीक है, सो ये हो गए जो कैसे एक पैथोजन एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रैवल करता है। वो डायरेक्ट भी ट्रैवल कर सकता है और वो थ्रू एक वेक्टर भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, ये आई थिंक दिस इज क्लियर। ये हो गए या उसे एक इंटरमीडिएट होस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। ये हो गए जो पैथोजन से रिलेटेड फैक्टर्स। और होस्ट को वो कितना इफेक्ट करेगा ये डिपेंड करता है जो होस्ट का इम्यूनिटी कैसा है, होस्ट मैलनरिश्ड है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, मतलब उसका क्या वो मैलनरिश्ड है, क्या उसका न्यूट्रिशनल वो अच्छा हेल्दी खाने पीने वाला इंसान है, उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, क्या उसे और कोई बीमारी है। मान लो अगर किसी को हाइपरटेंशन या डायबिटीज है तो हो सकता है उसे एक दूसरा बाहर से जो पैथोजन, क्योंकि उसका शरीर ऑलरेडी कमजोर है, तो बाहर से जो पैथोजन आएगा वो उसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। होस्ट का एज क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, वो कितना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करता है या फूड हाइजीन। फूड हाइजीन मतलब वो जाके बाहर का खुला हुआ खाना खा लिया। ठीक है, पर्सनल हाइजीन मतलब वो बार बार अपना हाथ धो रहा है कि नहीं, मुंह वॉश कर रहा है कि नहीं बाहर से आने के बाद। तो दीज आर ऑल, वो ये सारे ऊपर भी डिपेंड करता है। ये है होस्ट फैक्टर्स, जो वो इन्फेक्टेड होने के चांस उसके कितने हैं, और पैथोजन के जो फैक्टर्स है वो हम लोग ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। अभी जैसे हम लोग इस होस्ट और वेक्टर को और थोड़ा मतलब डिटेल में, जो मैंने बताया द सेम थिंग, होस्ट मतलब होस्ट और वेक्टर टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स है जो बताता है व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पहले भी अभी डिस्कशन किया है, दिस इज अ रिपीटेटिव थिंग। तो होस्ट एक ऐसा लिविंग थिंग है जहां पे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जहां पे थ्राइव करता है। ठीक है, यूजुअली जब हम लोग होस्ट पैथोजन डायनामिक्स पढ़ते हैं इन बायोलॉजी, जस्ट तुम लोगों को ये बता दे, जो यूजुअली ऐसा नहीं होता है जो एक पैथोजन जानलेवा होता है। ऐसा नहीं होता वो इन्फेक्ट करेगा तो हमें मार के ही दम लेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मर जाएंगे तो वो पैथोजन भी नहीं बच सकता। उस पैथोजन को जिंदा और पनपने के लिए होस्ट जरूरी है। तो यूजुअली ऐसा डायनामिक्स है हमारे नेचर का, जो एक पैथोजन अपने ही होस्ट को मार नहीं डालता है या बहुत ज्यादा हार्म नहीं कॉज करता है। उसे अगर बहुत वीक कर दे तो वही नहीं जिंदा रह पाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया है, जो अगर एक पैथोजन को बहुत ज्यादा मौका दिया जाए एक होस्ट के अंदर पनपने के लिए, बहुत ज्यादा चांस दिया जाए, तो हम कुछ अपना केयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई अपना हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे, कोई सैनिटेशन नहीं, तो कितने हो गए? तो अगर हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करने वाले होते तो हमें 100 इन्फेक्ट करेंगे।
तो एक तो हमारे अंदर अच्छे से रह लेगा, ना हमें दिक्कत होगी ना उसे दिक्कत होगी। लेकिन अगर वो बढ़ जाएगा तो नेचुरली इट विल अफेक्ट आवर बॉडी। सो there are many instances when severe pathologies are occurring due to this microorganisms। ठीक है। now होस्ट भी कई तरीके के हो सकते हैं। किसी होस्ट को हम लोग बोलते हैं रिजर्वॉयर होस्ट। रिजर्वॉयर होस्ट मतलब उसके अंदर में जस्ट वो पैथोजन कुछ टाइम के लिए है, ठीक है, लेकिन वो डिजीज या कुछ डिजीज नहीं कॉज कर रहा है, वो डिजीज कॉज करेगा जब वो प्राइमरी होस्ट पे जाएगा। ठीक है। रिजर्वॉयर होस्ट हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को भी रिजर्वॉयर होस्ट मानते हैं, जैसे सॉयल, वाटर, इनको भी हम रिजर्वॉयर होस्ट मानते हैं, जहां पे कुछ टाइम तक वो पैथोजन रह सकता है बिफोर इट गोज टू अ प्रॉपर होस्ट। ठीक है। किन्हीं होस्ट को हम लोग प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। उन होस्ट को हम लोग प्राइमरी होस्ट बोलते हैं जहां पे कि हमारा पैथोजन, कुछ पैथोजन, हम लोग यहाँ पे वायरस, छोटे छोटे बैक्टीरियल और या वायरल पैथोजन की नहीं बात कर रहे, कुछ और बड़े पैथोजेंस जो कि मतलब जो और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मेक में, जैसे प्रोटोजोअन, हेलमिंथ एटसेट्रा, वॉर्म्स की तरह जो होता है, वॉर्म होता है ना, जो पेट में वॉर्म हो गया हम लोग बोलते हैं, वही ऐसे लोग, ऐसे पैथोजन जो किसी होस्ट में सेक्सुअल मैच्योरिटी एक्वायर करते हैं और बढ़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, उन होस्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। ठीक है। और इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट हम उन्हें बोलते हैं जहां पे कि वो अपने इमैच्योर स्टेजेस, लाइफ के इमैच्योर स्टेजेस को, वो जब इमैच्योर स्टेजेस में जब जहां पे वो रहते हैं, जिस जगह पे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे जैसे बहुत सारे पैथोजन होते हैं जो दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। एक तो प्राइमरी होस्ट जहां पे वो बड़े होने के बाद बड़े होंगे, सेक्सुअली मैच्योर करेंगे, मेट करेंगे, अपने प्रोजेनी, बच्चे पैदा करेंगे, प्रोजेनी पैदा करेंगे और बढ़ेंगे। और एक होस्ट जहाँ पे वो बचपन में रहेंगे, छोटे के टाइम पे, जब वो अभी बड़े नहीं, छोटे से बड़े होंगे, बड़े होने के बाद फिर वह प्राइमरी होस्ट में चले जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट, ये जानना बहुत जरूरी है सो दैट यू गेट अ आइडिया ऑफ हाउ द इन्फेक्शन स्प्रेड्स। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लिए होस्ट के। ठीक है। नाउ अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इन एग्जाम्पल्स को तुम ध्यान से देखना। तो द फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल हो गया कोलेरा। ठीक है। कोलेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। हमें पता है कि इंटेस्टिनल डिजीज है। और ये कब होता है? जब एक बैक्टीरिया जिसका नाम है वाइब्रो कोलेरी, व्हाट दैट डज, दैट is present in contaminated human faces। ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो हमारा वेस्ट होता है, जो हमारे पूप्स होते हैं, फेसेस होते हैं, वहां पे ये कॉलेरा, एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर होगा तो वो फेसेस से इसे निकालेगा। ठीक है। वहां से वो पानी को भी इन्फेक्ट कर सकता है या खाने को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और ऐसे ही वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कॉलेरा फैलता है। ठीक है। और इसका सिम्टम क्या है? डायरिया, डायरिया मतलब लूज मोशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन। जब डायरिया हो गया, वॉमिटिंग होगा तो नेचुरली डिहाइड्रेशन होगा। और सीवियर कंडीशन में कोलेरा से मसल क्रैम्प्स हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। नेचुरली जब सारा पानी तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा, तुम डिहाइड्रेट कर जाओगे, तो ब्लड का प्रेशर भी लो हो जाएगा। ठीक है। और परसिस्टेंट वोमिटिंग, दीज आर द सीवियर सिम्टम्स। ठीक है। तो एक छोटा सा बैक्टीरिया है जो ओपन, अब यहाँ पे देखो, अगर हम ओपन, अगर ओपन डिफेकेशन हो रहा है तो क्या होगा? ये कोलेरा थ्रू द फीकल मैटर ओपन फील्ड में हो रहा है। अब उस फील्ड से सपोज हम पानी यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, तो पानी में भी हो गया। वो पानी अगर बारिश हो गई तो वो पानी गंदा पानी मतलब बनेगा, वो गिरेगा, उसके बाद वो सीप करके अंदर ग्राउंड वाटर में चला जाएगा।
उसी से अगर हम ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं ग्राउंड वाटर से तो वो पानी को भी इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, अगर छोटा सा बच्चा है वो बाहर गया पॉटी करने तो वो पॉटी करके अपना हाथ नहीं धोएगा तो उसके हाथ से भी वो फैल जाएगा। वो जाके कोई खाना बिना हाथ धोए वो कोई खाना पकड़ लिया, खाना खा लिया, उस खाने में भी वो फैला दिया, उसी खाने को जब उसकी माँ खाई या और कोई बच्चा खाया तो फैल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है तो ये कॉलेरा फैलेगा। ठीक है, हमने बहुत सुना है पोलियो, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट पोलियो एंड ऑल्दो पोलियो इज कंप्लीटली इराडिकेटेड नाउ बट स्टिल वी विल लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पोलियो हियर। ठीक है, तो ये जो पोलियो का वायरस है ये पानी में या खाने में कंटामिनेटेड रहता है। ठीक है, पानी या खाने से फैलता है। ऐसे कंटामिनेटेड पानी को अगर एक पर्सन इंजेस्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो वायरस चला जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में वो जाके बड़ा होगा। देखो यहाँ पे इंटेस्टाइन में वो फैल रहा है। उसके बाद क्या होगा, वो बॉडी को अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा, पोलियो किसे अटैक करता है, मसल्स को अटैक करता है और एक तरह का पैरालिसिस कर देता है। ठीक है, यूजुअली ये जो पोलियो वायरस है ऐसा नहीं है जो पोलियो वायरस इंजेस्ट करेगा उसके इंटेस्टाइन में जाके वो मसल को करेगा, लेकिन 4 में से एक ऐसा केस होगा बच्चे का जहां पे वो ऐसे मसल्स को वीक कर देगा और लाइफ लॉन्ग वो पैरालिसिस कर देगा। और जो पर्सन इन्फेक्टेड हुआ है वो जब स्टूल पास करेगा, वो जब अपना फेसेस पास करेगा, एक्सक्रीट करेगा, तो उसमें भी वो वायरस मिलेगा और ऐसे करके वो वायरस फैलेगा। ठीक है, जैसे कि पहले ही कहा, व्हाट आर द सिम्टम्स, ये जो जितने भी सिम्टम्स पोलियो से रिलेटेड है ऑल आर रिलेटेड टू द मसल्स। सो व्हाट डज इट अफेक्ट, इट अफेक्ट्स द सोल्जर मसल्स, हाथ के मसल्स को देखो कैसे कर दिया है, पैर का मसल्स एक्सेट्रा, थंब मसल्स एक्सेट्रा। तो इट विल वीकन योर मसल्स स्पेशली द चिल्ड्रन, और वो ऐसा पैरालाइज कर देगा जो इवन देयर आर पोलियो अफेक्टेड पीपल हु आर नॉट इवन एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। ठीक है, ऑल्दो नाउ पोलियो इज गॉन बट दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम एंड द major like reason for spreading of this polio was improper sanitation. ठीक है, हम एक और ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो एक पोलियो से नर्व सिस्टम डैमेज नहीं होती है क्या? नहीं, मसल्स। Okay. जो भी तुम्हारा जो वीक होता है वो मसल्स की वजह से ही होता है। एक्चुअली इट अफेक्ट्स द मसल्स, लेकिन देख के ऐसा लगता है जो नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, लेकिन मसल्स डैमेज होते हैं। बेसिकली जो पैरालिसिस होता है वो मसल की वजह से होता है। ठीक है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट, एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लिशमैनिया। ठीक है, और वो कॉज क्या करता है, लिशमैनियासिस। पहले देखेंगे वो कैसे फैलता है। ठीक है, तो वो एक, मान लो हम अगर यहाँ से शुरू करें, वो एक फैलता है एक सैंड फ्लाई के थ्रू से। ठीक है, सैंड फ्लाई को हम लोग बोलते हैं फ्लेबोटोमस ऑल्सो। ठीक है, तो what it does if this is a human infected human जिसे लिशमैनियासिस है, अब ये इन्फेक्टेड ह्यूमन के ऊपर अगर ये बैठेगा ये सैंड फ्लाई, ठीक है, और इसका ब्लड को सक करेगा, तो वो ब्लड वो क्या ले लेगा, वो एक स्टेज ले लेगा जिसको, और ये कहाँ पे रहता है, ये लिशमैनियासिस हमारे ब्लड सेल्स में रहता है। हमारा ब्लड सेल्स कई तरीके के होते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ईस्नोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं एक्सेट्रा। तो मैक्रोफेजेस एक तरीके का ब्लड सेल होता है जो हमारे बॉडी को इंफेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, जिस पर्सन को भी लिशमैनियासिस होगा उस पर्सन का मैक्रोफेजेस क्या ट्राई करेगा, जो उसको हम एनगल्फ करके खत्म कर दे। ठीक है, मैक्रोफेजेस का काम होता है, ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं बॉडी के इम्यून सेल, जो बाहर के पैथोजन को एनगल्फ करके उसे खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस लिशमैनिया का एक स्टेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोमैस्टिगोट। इस प्रोमैस्टिगोट को
हमारा जो मैक्रोफेजेस होता है वो इंजेस्ट मतलब ले लेता है अपने अंदर, ठीक है। अब ये प्रोमास्टिकोट इतना स्मार्ट है जो ये ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया है जो ये प्रोमास्टिकोट इस मैक्रोफेजेस के अंदर पनपने लगता है, बड़ा होने लगता है। मतलब वो ऐसा अपना काउंटर स्ट्रैटेजी, अगर हमारा स्ट्रैटेजी है जो हम लोग मैक्रोफेजेस से एनगल्फ करके प्रोमास्टिकोट को खत्म कर देंगे, लेकिन इस लिशमैनिया का मतलब काउंटर स्ट्रैटेजी है जो वो भैया ऐसे बना लिया जो वो मैक्रोफेजेस के अंदर ही बड़ा होता जाएगा। अब एक स्टेज आ जाएगा जो बड़ा होते होते वो प्रोमास्टिकोट्स बड़ा होके रिलीज इसके अंदर बड़े होंगे, मैक्रोफेजेस बर्स्ट करेंगे और इसके अंदर से अमास्टिकोट्स निकल जाएंगे। अब एक पर्सन जिसमें लिशमैनियासिस है उसमें प्रोमास्टिकोट, अमास्टिकोट हर तरीके का स्टेज मिलेगा। अब इस अमास्टिकोट को हमारा फ्लाई जब वो हमसे खून चूस रहा है तो वो ले लेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो फ्लाई के सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और वो अमास्टिकोट से फिर से प्रोमास्टिकोट स्टेज में ट्रांसफॉर्म करेगा इन द फ्लाइज। और इस ये जो अमास्टिकोट है ये उस फ्लाई के गट में बड़ा होगा, ठीक है, और बड़ा होके फिर उसके प्रोबोसिस तक ट्रैवल करेगा। अब ये ऐसा वाला जो प्रोमास्टिकोट उसके प्रोबोसिस में है, ऐसा साइन फ्लाई अगर एक दूसरे ह्यूमन को काटता है तो उससे भी हो जाएगा। और लिशमैनिया इज सो स्मार्ट जो वो सिर्फ ह्यूमन होस्ट ही नहीं है, वो और भी होस्ट के अंदर ये काम कर सकता है। जो वो ह्यूमन के अंदर कर रहा था वो एक यहाँ पे डॉग के अंदर भी कर सकता है। डॉग का भी मैक्रोफेज प्रोमास्टिकोट को इंजेस्ट कर रहा है और मैस्टिकोट को छोड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है जो वो सिर्फ ह्यूमन और ह्यूमन से फैल रहा है थ्रू फ्लाइज, वो एक कुत्ते से भी फैल रहा है। वो डॉग को अगर ये सैंड फ्लाई काटी, ह्यूमन को काटने का जरूरत नहीं है, वो इस डॉग को काटी, ठीक है, और ये काटने के बाद वो ह्यूमन में गई तो फिर होगा। तो ये भी is related to improper sanitation because wow, you have to stop this growth of this, stop or contain the growth of these flies. Why? Because these flies will grow on like dirty places where there is lots of human excreta etc. So हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा, रोकना चाहिए in order to prevent this condition. अब लिशमैनियासिस से क्या होता है, तो लिशमैनियासिस बहुत सारी तरह, और लिशमैनियासिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया टिल नाउ एंड लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन जो हम लिशमैनिया को कैसे कंट्रोल करें। तो वो अगर हमारे विसरा को, मगर अगर हमारे गट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर वो इफेक्ट कर दे तो वो एक कंडीशन कॉज कराता है जिसे कहते हैं काला आजार, ठीक है। काला आजार वही डिसेंट्री लाइक सिम्टम्स, स्टमक एक, डायरिया एक्सेट्रा, ठीक है। वो ऐसे भी लिशमैनियासिस हमारे स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे एक फिगर है जो लिशमैनियासिस की वजह से स्किन में क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये हमेशा बोला जाता है दिस इज अ पुअर मैन्स डिजीज। सो पुअरेस्ट पीपल जो कि मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं, उनका हाउसिंग पुअर है, उनको इफेक्ट कर रहा है। तो क्यों इसे बोला गया जो वो पुअर लोगों को इफेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि पुअर लोगों का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो उनका वो इम्प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है, पुअर हाउसिंग एक्सेट्रा, और उसी के वजह से उनको मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, जिसके वजह से उनका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, जिसके वजह से कि वो ज्यादा प्रोन हो जा रहे हैं टू गेट अफेक्टेड बाय लिशमैनियासिस, ठीक है। एक और तरीके का, अब तुम लोग एमीबिक डिसेंट्री के बारे में भी बहुत सुने होंगे, आई एम श्योर। डिसेंट्री जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है, विच इज कॉल्ड एमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। अमीबिया एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो क्या होगा, ये कैसे होगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका? सो ये कुछ मैच्योर सिस्ट बोलते हैं, जिसे, जो कि पहले सिस्ट मतलब क्या, सिस्ट मतलब वो एक शेल, एक हार्ड कवरिंग
के अंदर है, ठीक है। और ऐसे जो सिस्ट के अंदर जो मतलब ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो बहुत हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे बहुत बारिश हो रहा है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेंगे नहीं। बहुत धूप में भी वो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और जब एनवायरमेंटल कंडीशन सही हो जाएगा तो वो एक्सिस्टेशन मतलब सिस्ट को तोड़ के वो बाहर निकल जाएगा, ट्रोफोजोइड बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रोफोजोइड मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करते करते वो और भी कुछ ट्रोफोजोइड्स देंगे, या अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छा नहीं हो तो वो फिर से सिस्ट बना देगा, ठीक है। अब ये जो सिस्ट फॉर्म है, ये एनवायरमेंट में तो सरवाइव कर ही सकता है, और ये हमारे शरीर के अंदर भी जा सकता है फ्रॉम फूड। जैसे वो सिस्ट के फॉर्म में ही वो हवा में बहुत छोटे छोटे सिस्ट होते हैं एंटामीबा के, वो उड़ते 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 जैसे ऊपर, जैसे हम लोग चाट फुचका बहुत पसंद करते हैं बाहर का, जैसे बाहर रोड साइड स्टॉल्स में हम लोग खाना पसंद करते हैं, आई अग्री, वी डू दैट, बट दैट इज सो अनहाइजेनिक। व्हाई? बिकॉज वहां पे ऊपर उड़ते 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 एक हो सकता है सिस्ट के बैठ गया, वो सिस्ट एंटामीबा का सिस्ट, और वही हम लोग खाने के साथ रोड साइड स्टॉल में खाने के साथ हम उसे भी खा गए, और फिर क्या हुआ, उसे इंजेस्ट करने के बाद वो जैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, वो देखेगा अच्छा कंडीशन है तो वो सिस्ट तोड़ के वो निकल जाएगा, वहां पे वो मल्टीप्लाई करेगा और वो कई चीजों को अफेक्ट करेगा। तो वो हमारा ऐसे ही मतलब हो सकता है ऐसे ही वो हमारे शरीर के अंदर बड़ा हो, बड़ा होने के बाद हमारे फीकल मैटर से वो निकल जाए, या ऐसे भी हो सकता है जो वो हमारे किसी लिवर को या लंग्स को भी अफेक्ट करे। देखो यहाँ पे रेड में दिखा रहा है, लिवर को और लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डिजीज, ठीक है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में एंटामीबा हिस्टैलिटिका कैन आल्सो ट्रैवल टू द ब्रेन। अगर वो हमें कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस वो हमारे अंदर जा रहा है, बड़ा हो रहा है और हमारे फीकल मैटर से निकल जा रहा है, तो भी उसका नुकसान ये है जो वो हमारे अंदर मैल न्यूट्रिशन पैदा करेगा, ठीक है, हमको मैल नरिश्ड कर देगा, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें वो भी अपना उसका भागी वो भी हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर बहुत सारे जर्म्स है, बहुत सारे वॉर्म्स है, तो दे कैन मेक अस मैल नरिश्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन कॉज दीज मैलेडीज। एमीबिक डिसेंट्री का सिम्टम्स जैसे कि कहा, लूज फेसेस मतलब लूज पूप से पॉटी, स्टमक पेन, स्टमक क्रैम्पिंग, ये हो गया कॉमन, ठीक है। और अमीबिक डिसेंट्री का सीवियर सिम्टम हो गया जो ब्लडी स्टूल्स मतलब जो हमारा पॉटी है उसके साथ खून का आना, फीवर एटसेट्रा। सो दीज आर वेरी माने सीवियर कंडीशंस ऑफ एमीबिक डिसेंट्री। और ये भी जब पुअर सैनिटेशन होता है तो हमें एमीबिक डिसेंट्री स्पेशली हमारे बच्चों में बहुत मिलता है। बच्चों में ही ये लिशमैनियासिस, एमीबिक डिसेंट्री, जो बच्चे जिन्हें बड़ा होना है और हमारे देश को संभालना है और कुछ कर दिखाना है, वही मैलनरिश्ड हो जा रहे हैं, वही बीमार पड़ जा रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे कैसे, वो बड़े कैसे होंगे? दिस इज द प्रॉब्लम। एक और जिसे कहते हैं जियार्डिया लैम्बलिया, ठीक है। तो ये जियार्डिया का भी दो स्टेज होता है, एक सिस्ट का फॉर्म होता है, एक ट्रोफोजोइट होता है। ये जो ट्रोफोजोइट है ये हमारे खाने से अंदर जाता है। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। मैम क्लियर आवाज आ रही है आप लोगों को। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो तुम लोग अपना वो देखो एक बार। ओके ओके ठीक है, चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो ये ट्रोफोजोइट हो गया। ये ट्रोफोजोइट हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और यहाँ पे वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन का एक मतलब मेथड होता है जिससे वो बड़ा होगा, फिर वो सिस्ट बनाएगा और इस सिस्ट के फॉर्म से वो हमारे स्टूल से निकल जाएगा। और ये जियार्डिया क्या करता है? जियार्डियासिस कराता है। जियार्डियासिस क्या होता है? फिर वही लूज मोशन, डायरिया, गैस, फाउल स्मेलिंग एंड ग्रीसी पॉटी, ठीक है। ग्रीसी पॉटी मतलब ये हमारा जो फैट का जो फैट एब्जॉर्प्शन को ये अफेक्ट कर देता है, ठीक है। स्टमक क्रैम्पिंग होता है एटसेट्रा। और बच्चों में अगर फैट एब्जॉर्प्शन नहीं हो तो वो बड़े कैसे होंगे बोलो? डिहाइड्रेशन एटसेट्रा, ठीक है।
एक और तरीका का होता है, आई एम गिविंग यू, देखो कैसे कैसे कितने तरह के गंदे गंदे पैथोजेंस हमारे लिए जो गंदे वो फैल रहे हैं। तो ये हो गया इन्फेक्शन साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा, ठीक है, इसे कहते हैं ब्लड फ्लूक। ये क्या करता है, इसके भी एग्स जो होते हैं वो इन्फेक्टेड ह्यूमंस के थ्रू से ये शेड होंगे एग्स, ये एग हैच करेंगे और हैच करके उसका एक स्टेज होता है जिसे कहते हैं मीरासीडिया लार्वा। मीरासीडिया लार्वा, ये मीरासीडिया लार्वा क्या करता है, एक स्नेल को जो स्नेल्स होते हैं उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये स्नेल के अंदर वो बड़ा होता है, स्पोरोसिस्ट बनाता है एक्सेट्रा। वो स्पोरोसिस्ट एक फ्री स्विमिंग लार्वा के फॉर्म में स्नेल उसे रिलीज कर देती है, ठीक है। अब ये फ्री स्विमिंग लार्वा स्किन के थ्रू से एक ह्यूमन के अंदर आ सकता है। अगर वो एक देखो जैसे एक पानी है, ठीक है, उस पानी में स्नेल्स भी हैं, उस पानी में फीकल मैटर या यूरिन भी हो रहा है, उसके पानी एक वाटर बॉडी है। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक कंडीशन, जो छोटा सा पॉन्ड है, उस छोटे से पॉन्ड के पास ही एक फील्ड है या ग्राउंड है जहाँ पे छोटे बच्चे पॉटी करते हैं क्योंकि टॉयलेट नहीं है, या बड़े लोग भी कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, या यूरिन कर रहे हैं, ठीक है, उस यूरिन या उस फेसेस में हमारे ये सिस्टोसोमा का सिस्ट्स है, ठीक है, एग्स है। अब ये एग क्या करेगा, ये निकलेगा और इसे क्या मिलेगा, पानी का सरफेस मिलेगा, पानी में स्नेल्स रहेंगे, उस स्नेल्स के अंदर ये चला जाएगा, स्नेल्स के अंदर ये बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद वहां पे वो स्पोरोसिस्ट्स बनाएंगे। देखो ये पानी पानी बना हुआ है, पानी के अंदर ये स्पोरोसिस्ट्स को ये रिलीज कर देंगे, फ्री स्विमिंग लार्वा जिसे हम लोग कहते हैं सर्केरिया लार्वा। इस सर्केरिया लार्वा, अब एक इंसान उसी पॉन्ड में वो नहाने चला गया, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन। वहां पे जब वो नहा रहा है तो सर्केरिया लार्वा इसको स्किन को पेनिट्रेट करेगा। कैसे, इस सर्केरिया का देखो एक हेड है, एक टेल है, ये जब पेनिट्रेट करेगा तो इस टेल को लूज कर जाएगा और इसको कहते हैं सिस्टोसोम्यूली। और ये सिस्टोसोम्यूली स्किन के अंदर, स्किन के थ्रू से सर्कुलेशन में चला जाएगा, सर्कुलेशन के थ्रू से वो लिवर तक पहुंचेगा, लिवर में वो अडल्ट फॉर्म बनेगा, मैच्योर फॉर्म। ये मेल और फीमेल मेट करेंगे, मेट करके एग्स प्रोड्यूस करेंगे और एग्स को फिर उस इन्फेक्टेड इंसान के यूरिन या पॉटी के थ्रू से वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये ह्यूमन है ये क्या है, ये प्राइमरी होस्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों वॉर्म, ये जो वॉर्म है सिस्टोसोम्यूली विच इज द मैच्योर फॉर्म, ये बड़ा होने के बाद ये मेट कर रहे हैं और मेट करके अपना एग निकाल रहे हैं, मतलब ये मेट करके अपना बढ़ा रहे हैं, अपने प्रोजेनी का बढ़ोतरी कर रहे हैं यहाँ पे। और जब ये एग, इसका जो एग हो गया, ये एग से जो लार्वा निकला, मीरासीडिया फ्री स्विमिंग सर्केरिया लार्वा, ये किसमें, ये स्नेल को ये कर रहा है। तो स्नेल क्या हो गया, स्नेल हो गया हमारा इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि यहाँ पे वो अपना बचपन गुजार रहा है और इंसान में वो क्या गुजार रहा है, अपना बड़ा स्टेज गुजार रहा है, ठीक है। तो एंड दिस इज हाउ वी आर promoting शिस्टोसोमा, we are promoting, we are encouraging शिस्टोसोमा। तुम बड़े हो, तुम हम लोग को इन्फेक्ट करो, तुम हम लोगों में प्रॉब्लम कॉज करो। कैसे, बिकॉज ऑफ आवर ओन बैड हैबिट्स। शिस्टोसोमा के, विल गो क्विकली, शिस्टोसोमा के क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स है। वो हमारे ऐसे शिस्टोसोमा कुछ नहीं करेगा, उसका मेल फीमेल बड़ा होगा, मेट करेगा, एग निकालेगा, लेकिन वो कुछ, उसका जो एग होगा वो हमारे बॉडी में जो उसका जो बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हैं और उसके रिएक्शन की वजह से हमारा ड्राई इची स्किन हो सकता है, रैश हो सकता है। क्रॉनिक सिस्टोसोमासिस में हमें एब्डोमिनल पेन, लिवर एनलार्जमेंट हो सकता है, क्योंकि ये कहाँ बड़ा होगा, ये लिवर में बड़ा होगा, ठीक है। बहुत सीवियर केस में स्टूल के साथ ब्लड भी निकल सकता है, चूंकि ये यूरिन से, स्टूल से, दोनों से निकलता है, इसलिए यूरिन के साथ भी ब्लड निकल सकता है, ठीक है। एक और है दैट इज कॉल्ड द
एस्कैरियासिस. एस्कैरियासिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्मार्ट फॉर्म. वो उसका भी मेल और फीमेल हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है एस्कैरिस, और एस्कैरिस बहुत कॉमन है, बहुत सारे बच्चों में मिलता है, और हम लोग डीवॉर्मिंग करते हैं बच्चों को एल्बेंडाजोल देके टू रिमूव दिस फॉर्म. इसका मेल और फीमेल हमारे इंटेस्टाइन में जाके क्या करेगा, मेट करेगा, मेट करके एग निकालेगा, उस एग पॉटी के साथ निकलेगा. ठीक है, अब ये एग हमारा एनवायरनमेंट में फ्रीली रहेगा. ठीक है, और वो खाने के साथ या पानी के साथ फिर हमारे इंटेस्टाइन में फिर हम उसे इंजेस्ट करेंगे. ठीक है, इंटेस्टाइन से चूंकि ये एग बहुत छोटे होते हैं तो वो हमारा सर्कुलेशन में भी, मतलब वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं थ्रू इंटेस्टाइन, और ब्लड से वो कहाँ आ जाते हैं, लंग्स में आ जाते हैं. लंग्स में वो उसका लार्वल स्टेजेस उसका लंग्स में बीतता है, मतलब उसका सारा जो स्टेजेस सब ह्यूमन में ही बीतता है, बचपन बड़ा सब कुछ. ठीक है, अब उसका लार्वल स्टेजेस का उसका जो 4th इंस्टाल लार्वा होता है, देयर इज अ वेरी फनी थिंग आल्सो अबाउट दिस. जब उसका 4th लार्वल स्टेज जब लंग में 4th तक पहुंच जाता है तो वो हमारा जो ट्रैकिया होता है, जो विंड पाइप होता है, उसे वो टिकल करता है. ठीक है, गुदगुदी टिकलिंग करता है, तो हमें एक कफ टाइप का होता है, नॉट बिकॉज ऑफ cold, not because of sneezing, not because of real cough. ठीक है, एक ड्राई कफ कराता है टिकलिंग करके. जैसे ही हम खांसते हैं तो उसका जो 4th इंस्टाल लार्वा होता है वो क्या करता है, मुंह में आ जाता है खांसने की वजह से, और मुंह से क्या करता है, फिर हम लोग उसको निगल लेते हैं, और वो निगल के ये 4th इंस्टाल लार्वा फिर से हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है लंग से. ठीक है, और यहाँ पे वो फिर से बड़ा एस्कैरिस बन जाता है, यहाँ पे मेट करता है. तो इस तरीके से द स्मार्ट फॉर्म इज कंप्लीटिंग इट्स एंटायर लाइफ साइकिल inside us. And what does it cause? It usually does not cause anything in the lungs. lungs में वो ज्यादा कुछ नहीं करता है, लेकिन कभी कभी इस लार्वा अगर बहुत ज्यादा हो जाए लंग्स में तो कफ कराता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वीजिंग एक्सेट्रा कराता है. और इंटेस्टाइन में वो नेचुरली वो नॉजिया वॉमिटिंग कराएगा, डायरिया कराएगा, एब्डोमिनल पेन कराएगा. If it is very severe, if there are loads and loads of ascaris in your body, then it will cause fatigue, because they will be feeding on your nutrition. They will be taking your food that you are having. तुम फूड को मेहनत से खा रहे हो, उसे डाइजेस्ट कर रहे हो, और वो क्या कर रहा है, उस बना बनाया फूड जो डाइजेस्टिव फूड है उसे वो ले रहा है. ठीक है, तो नेचुरली मैल न्यूट्रिशन होगा ही. ये एक और बड़ा सा चीज है जिससे कॉल्ड टीनिया सोलियम. ठीक है, टीनिया सोलियम एक बड़ा सा वॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और उसका स्कॉलेक्स की थ्रू से, उसका हेड का जो पार्ट होता है हम लोग स्कॉलेक्स बोलते हैं, उससे थ्रू से वो एक वैक्यूम क्रिएट करके हमारे इंटेस्टाइन के साथ चिपका रहता है. तो एक बार अगर किसी को टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन, टीनिया का इन्फेक्शन हो जाए, ऑलवेज रिमेम्बर, एक बार अगर किसी को टीनिया हो जाए तो वो कभी भी उससे नहीं निजात पा सकता है, कभी भी नहीं. तुम जो भी खा लो, चूंकि वो वैक्यूम क्रिएट करके चिपक जाता है इंटेस्टाइन से, इसीलिए उसका एक ही तरीका है, उस इंटेस्टाइन के पोर्शन को काट के निकालना पड़ता है, लेकिन हम उसे नहीं निकाल सकते खींच के. अब ये एक बार आ गया तो वो क्या करेगा, अब इसमें क्या होता है, दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, मींस उसके अपने अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट दोनों रहता है. ठीक है, और इसके जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं इसे कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स. यहाँ पे देख रहे हो, एक ऐसे 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 सेगमेंट से बड़ा सा वॉर्म, इसका स्कॉलेक्स ऊपर है, फेसेस के थ्रू से, स्टूल्स के थ्रू से वो निकाल देगा, मतलब वो अपने चिपका हुआ है, वो अपने प्रोग्लॉटिड्स को निकाल देगा. ठीक है, दे आर कॉल्ड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स. अब ये प्रोग्लॉटिड्स की एनवायरनमेंट में निकाला, अब हमारे वहां पे पिग्स हैं, अगर हम डिफेकेट कर रहे हैं इन द ग्रास, इन द ग्राउंड, हमारा वो गाय भी चल रहा है और पिग्स भी चल रहा है. ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो जाके ऑन्कोस्फोर्स को हमारे पिग्स खा रहे हैं और ये खा रहे हैं, गाय खा रहे हैं, और ये ऑन्कोस्फियर्स जाके पिग्स के मसल में चला जाता है और सिस्टी सर्की बना देता है. अब ये सिस्टी सर्की क्या करेंगे, सिस्टी सर्की को हम लोग जब पोर्क खाते हैं, कुछ लोग जो पोर्क खाते हैं,
अनकुक्ड, मतलब अच्छे से पोर्क को कुक करके नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो उस पोर्क को क्या कहते हैं, मीजली पोर्क कहते हैं। रास्ते में बहुत सारे जगह में, मे बी आई हैव नॉट सीन इट इन दरभंगा, बट बहुत सारे जगहों में होता है रास्ते में यू आर कुकिंग पोर्क, हाफ कुक हाफ नहीं, मीजली पोर्क कुक कर रहे हैं जिसमें ये सिस्टी सरकी है, और उससे एक इंसान अगर खा ले मीजली पोर्क को तो उसके उसमें, और वो सिस्टी सरकी इतना ये रहता है जो वो हल्के फुल्के हीट से नहीं मरता है, वो ना ही हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से मरेगा, वो अंदर जाएगा और फिर से अटैच्ड हो जाएगा, फिर इट विल कॉज, ठीक है। तो ये तो नेचुरली हमारे इंटेस्टाइन से लग के वो सक कर रहा है, लेकिन ये एक और भयंकर चीज करा सकता है, जो कि जैसे कि मैंने कहा ये सिस्टी सर्कस लार्वा जो कि एक पिग के मसल में चला गया, ऐसे कभी कभी होता है, हम बैठे हैं, सिस्टी सर्की का लार्वा, सिस्टी सर्कस है, घास में भी है, या मतलब वो मीरासी कौन सा लार्वा जो वो एक के साथ ये किया, that stage is called oncosphere, yes, oncosphere, that we can also ingest, और वो अगर हम इंजेस्ट कर दिया और हमारे मसल में वो चला गया और हमारे ब्रेन में चला गया तो इट कैन कॉज सिस्टी सर्कोसिस विच इज डिफरेंट। टीनियासिस क्या होता है, जब वो बड़ा टीनिया सोलियम इन्फेक्ट करता है, और सिस्टी सर्कोसिस क्या होता है, जब उसका सिस्ट इन्फेक्ट करता है, दैट कैन इवन कॉज second called paralysis, that can cause epileptic attack, ठीक है, वो ब्रेन में भी जाके कर सकता है, दैट इज वेरी बैड। तो ओवरऑल हम लोग जब यहाँ पे इतनी सारी चीजें देखे, इसका एक ही है जो ओपन डिफिकेशन, बाहर में कोई पॉटी कर रहा है, हाथ नहीं धो रहा है, बिना हाथ धोए खाना खा रहा है, ठीक है, वो इन्फेक्ट कर रहा है, उस पॉटी में मक्खी बैठ रही है, यही मक्खी खाने में बैठ रही है, खाने से फिर जा रहा है, यही पॉटी से पानी धुल रहा है, धुल के हमारा क्रॉप्स बन रहा है, उस क्रॉप्स को हम यूज कर रहे हैं बिना धोए, उससे भी फैल रहा है। इससे क्या हुआ, ये पूरा बारिश हो गई, ग्राउंड वाटर भी जो अंदर चला गया, वो पीने वाला पानी भी, ड्रिंकिंग वाटर भी इससे कंटामिनेटेड हो जा रहा है, और होके हम इसे खा रहे हैं। तो इस पॉटी में, इस स्टूल में देयर इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका, देयर इज जियार्डिया, देयर इज कोलेरा बैक्टीरिया, पोलियो वायरस, एस्करिस एग्स and what not it can cause, ठीक है। अब हम छोटे से जाएंगे। I hope that you are not getting late for your other things. Can I take 5 to 10 minutes more? Sorry. जी मैम, बिल्कुल। हाइजीन से कैसे प्रिवेंट होगा इन्फेक्शियस डिजीज, अगर हम समय समय पे अपना हैंड वॉश करें, अगर हम कफ के समय अपना माउथ को कवर करें, अगर हम बॉडी को अच्छे से धोए, तो फिर चांसेस कम रहेंगे कि इन्फेक्शन फैले, ठीक है। हम ह्यूमन वेस्ट की बात किए, ह्यूमन वेस्ट मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है। ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, या जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इवन दैट, जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज यूरिन, ये सब का प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम, क्योंकि अगर इन वेस्ट को हम प्रॉपरली कलेक्ट करके अच्छे से ट्रीट और डिस्पोज नहीं करें, तो ये क्या करेगा, अगर हमारा वाटर सैनिटेशन और हाइजीन सही नहीं रहे, तो ये हमारा पानी को और सॉइल को इन्फेक्ट करेगा, और इससे प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हियर इट इज रिटन। सो अभी हम लोग बात किए जो बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेल्मिन होते हैं, जो हमारे फीकल मैटर में रहते हैं, हमारे यूरिन में भी रह सकते हैं, फीकल मैटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। एंड मेंस्ट्रुअल waste is always very, like, it should be properly disposed because it can be breeding ground for several pathogens, ठीक है। सो अगर उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ,
ठीक है, अगर वो खुले मैदान में अगर वो पड़ा रहा तो उससे बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे और हमें इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ टॉयलेट काफी नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने एक दिखाया, ये एक टॉयलेट बना हुआ है, ठीक है, अपने से बना, अपने से मतलब एक आर्केक टॉयलेट बना हुआ है, वहां पे ये बच्चा पॉटी कर रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है, प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, तो क्या हो रहा है, यही पानी अंदर चला जा रहा है और अंदर जाके ये ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा है और ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करके यही पानी हम पी रहे हैं। तो डिफिकेशन आउटसाइड नियर रेलवे और इवन इन अ सिस्टम दैट इज नॉट प्रॉपर कैन कॉज अगेन कंटामिनेट ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये एक छोटा सा कार्टून है जिसमें दिखा रहा है दिस इज द फीकल मैटर। ठीक है, द फीकल मैटर हमारे फिंगर। मैम हाँ। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, पीपीटी शो नहीं हो रहा है, एक बार फिर से शेयर करिएगा। अच्छा 2 मिनट, बस हमें 2 मिनट लगेगा। आई एम डूइंग इट अगेन। दिख रहा है? हाँ विजिबल है। हाँ, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है, जो ये जो बच्चा है, ये देखो ये टॉयलेट में ही कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल या प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। तो ये जो यहाँ पे कर रहा है, ये नीचे जाके ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा है और फिर यही ड्रिंकिंग वाटर बन जा रहा है। तो इट कैन, और मैंने जैसे कहा सिस्ट के फॉर्म में, हार्ड एग शेल के फॉर्म में बहुत सारे पैथोजेंस इजीली सर्वाइव कर जाएंगे बहुत देर तक, और ऐसे हो। फिर यहाँ पे ये कार्टून दिखा रहा है, जो देखो फीकल मैटर है, वो फ्लूइड से, फिंगर से, फील्ड फ्लोर से हमारे फूड में आ रहा है, वाटर सप्लाई को कर रहा है, हैंड वॉशिंग अच्छे से नहीं, और वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फैल रहा है। ठीक है, ये मैंने ये एक टैब्यूलर फॉर्म में दिया है, ये एक टैब्यूलर फॉर्म में दिया है, जो कैट से वायरल पैथोजेंस एक्सक्रीट हो रहे हैं। ये बस मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। व्हेन आई शेयर द मतलब प्रेजेंटेशन विथ यू ऑल, यू कैन हैव अ गुड लुक एट इट। जो देखो वायरल इतने सारे वायरल पैथोजेंस हैं जो ह्यूमन फीकल मैटर के साथ एक्सक्रीट हो सकते हैं। इतने सारे बैक्टीरियल पैथोजन है, मैंने तो कुछ डिस्कशन किया है जो कर सकते हैं। इतने सारे प्रोटोजोन है जो फीकल मैटर से एक्सक्रीट हो रहे हैं, और इतने सारे हेलमिंथिक पैथोजन है जो फीकल मैटर से एक्सक्रीट हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे ये मॉस्किटो है जो कितना कुछ करा रहा है, डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, मलेरिया, वेस्ट नाइल एक्सेट्रा। और ये कहाँ पे ब्रीड करता है ये मॉस्किटो? ये जो डेडली मतलब पैथोजन जैसे सम जीका वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू, ये तो मलेरिया से भी ज्यादा डेंजरस है। और ये ऐसे डिजीज फैलाने वाले वेक्टर कहाँ पनप रहा है? इन अनक्लीन स्पेसेस, इन स्टैग्नेंट वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, सो वी ऑल नो व्हाट इज द इल इफेक्ट ऑफ पुअर सैनिटेशन नाउ। सो दे आर अफेक्टिंग पीपल. We are affected by diarrheal disease, cholera, dysentery, typhoid, intestinal worms, etc. और अगर भी मतलब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो this is the figure of people of low and middle income group countries which who die as a result of improper sanitation and hygiene. ठीक है, which is very debilitating. तो cleanliness का और hygiene का you can see what is its great effect on health. ठीक है, और अगर हमारा सैनिटेशन प्रॉपर हो तो क्या हो सकता है? स्प्रेड ऑफ इंटेस्टिनल वर्म कमेगा, सिस्टोसोमासिस कमेगा, फिर हमारा मैल न्यूट्रिशन नहीं होगा। It also boosts, promotes our dignity. There are many girls who don't want to go to college or school because there is no proper system for them. ठीक है, to dispose their menstrual waste, or during menstruation they cannot there's no proper toilet for them to visit to. So अगर हम अच्छा toilets बनाए, sanitation system को अच्छा रखें, तो girl students will also go to college. This is one of the reason they don't want to go to college and school. उससे उसका attendance अच्छा बनेगा, microbial resistance naturally सही होगा, and overall it will improve the health of the country.
not just the physical health, the mental, economic health that I told in the beginning. So I'm very sorry that I'm late. I'm even late for my department. I would request all of you one thing. If you have a question, okay, you can take my WhatsApp number from Lakshmi ma'am, and she would post my query, or my puttul@gmail.com. PARUL parulputtul@gmail.com. कोई भी क्वेरी अगर हो तो इसमें जरूर तुम लोग पोस्ट कर देना. आई वुड हेल्प यू आउट, एंड आज शाम तक आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ लक्ष्मी. ऑल राइट लक्ष्मी? यस मैम. ओके. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. इतने क्रिएटिवली आपने पीपीटी प्रिपेयर किया था और इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी, जैसे कि लग रहा है समंदर भर दिया आपने इस टॉपिक से रिलेटेड. तो बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे बिल्कुल जो मैंने शुरू में कहा था कि ये हमारे बहुत लाभान्वित होंगे. कोर्स किए हुए हैं और Thank जब you, ma'am. शेयर कर दूंगी तो जो भी इनको कुछ अगर Thank you so much, ma'am. तो वो हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. थैंक यू मैम. Okay, thank you for being there in my class. Okay. Thank you, ma'am. And all of you, happy holiday, including Lakshmi. Today is the last working day before the summer holidays, so happy holiday all of you. Okay. Bye. Bye, ma'am.